Hello friends, let's prepare for common PG entrance test of English literature with me. Today's topic is British literature of 19th century. Let's start from the question 1. We will cover top 50 MCQs in this video, and this video must be a longer video, so keep watching till the end, and you will find every questions useful for your exam. Okay, so question number 1 is, who is the poet of the poem Break Break Break? As we know, it is from 19th century literature. So the poet of the Break 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 poem was Alfred and Lord Tennyson. Okay, question number 2, why the poet was sitting in a seesaw in the poem Break Break Break? Why he was sitting in a seesaw? The poet was sitting in a seesaw. The answer is to come out from sorrow. To come out from sorrow. Question number 3, what was happening in the seesaw in the poem Break Break Break? So in the seesaw, the sea waves were hitting the rocks, the fishermen's children were playing, the sailor lad sings in the boat, and all of this. So answer will be all of this. Question number 4, what is the meaning of the crags in the poem Break Break Break? Meaning of crags, CRAGS. It means rough and steep masses of rocks. Okay, rough and steep masses of rocks. Question number 5, what is the name of Tennyson's friend who died in the poem Break Break Break? So the poet Lord Tennyson's friend was Arthur Henry Hallam, who died in the poem Break Break Break. Question number 6, what does it mean will never come back to me? In the poem Break Break Break, will never come back to me means the poet's friend who will never come back to the poet described here. Question number 7, what is the color of the rock in the seesaw in the poem? The color of the rock was grey colored rocks. Question number 8, in the poem Break Break Break, which country does the poet belong to? The poet of Break 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 belonged to England. Country. Question number 9, what did the poet's tongue utter in the poem Break Break Break? What is the poet's tongue utter? The poet's tongue uttered. The poet's tongue utters in sadness. Okay. Question number 8. Question number 10. Tennyson succeeded Dash as the poet laureate in 1852. Tennyson succeeded Dash as the poet laureate. Tennyson succeeded William Wordsworth as the poet laureate in 1852. ये वाला भी important है, ये वाला आंसर भी important है. So both are gonna fall. Question number 11. The poem Break 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 commemorates the death of Dash. It commemorates the death of Arthur Hallam, who was the friend of the poet Lord Tennyson. Okay. Question number 12. The Break 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 is a or an dash that mourns a person's death. ये एक क्या है? सो जो वाले पोइम्स एक पर्सन के डेथ के लिए मॉर्न करते हैं, तो वो वाले पोइम्स को हम बोलते हैं एलिजी. तो ये होगा एन एलिजी. क्वेश्चन नंबर 13. इन ब्रेक 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 द फिशरमैन सन shouts with his sister at dash. Shouts with his sister at work, sleep, play or sickness. तो आंसर विल बी प्ले. खेलने के टाइम ये शाउट करता था फिशरमैन का सन. क्वेश्चन नंबर 14. Who sings in his boat on the bay in Break Break Break? Who sings in his boat on the bay? The sailor lad sings in the boat on the bay. ठीक है. Question number 15. In Break Break Break, the stately ships
go to their dash under the hill, go to their heaven under the hill. It is talking about the ships. The ships were going to the heaven, so the heaven is called as under the hill. It was under the hill means the land they gonna reach. Okay, the boat gonna reach the land which was under the hill is referred as heaven here. Question number 16. Where does the sea break in break poem? The sea break at the foot of the cracks. The sea breaks at the foot of the cracks. Question number 17. In the break poem, the mood of the speaker is dash. ये जो पोएम में स्पीकर का मूड क्या है? ग्रीफुल है, मतलब ये बहुत उदास है, तो हम ग्रीफ को चूज़ करेंगे एज आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. हु रोड द पोएम माई लास्ट डचेस? ये भी 19th सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर का पार्ट है. सो क्वेश्चन ये है कि हु रोड द पोएम माई लास्ट डचेस? माई लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है इसके पोएट. 19th क्वेश्चन. इन माई लास्ट डचेस इज डैश. तो इस पोएम में डचेस किसको समझाता है? ड्रामेटिक डायलॉग को, एन एरोमेटिक मोनोलॉग को, फ्रीमैन्स कैटलॉग को और ए ड्रामेटिक मोनोलॉग को. तो ये समझाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग को, ये वाला लाइन, माई लास्ट डचेस. क्वेश्चन नंबर 20. In my last duchess, a dramatic monologue makes the speaker dash. It makes the speaker unreliable because the speaker is giving their side of the story. It makes the speaker unreliable because the speaker is giving their side of the story. It will be the answer. Question number 21. My last duchess. In my last duchess, the main theme of the poem of my last duchess was gender inequality in society. ठीक है. Question number 22. My last duchess is in my last duchess, the speaker in a dramatic monologue. The speaker in a dramatic monologue dash tells the truth, is the poet speaking, or always gives a balanced view, और unreliable. So हम बोल सकते हैं ये है unreliable. Question number 23. In my last duchess, Browning was unusual in Victorian society because he had an equal relationship with his wife. So ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है जेंडर इनइक्वालिटी को. सो आज जो हमारे पोएट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो अपने आप को अपने वाइफ से इक्वल रिलेशनशिप डील करते थे, तो इसके बारे में उन्होंने माई लास्ट डचेस का पोएम लिखा था. क्वेश्चन नंबर 24. Was the duchess unfaithful to him in my last duchess? Was the duchess unfaithful to the speaker? So answer will be we can't know. The only information in the is the form of duke. तो ड्यूक के बारे में ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, लेकिन डचेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो ये हम नहीं बोल सकते. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इफेक्ट द कॉन्स्टेंट स्वैपिंग यूज ऑफ एंजम्पमेंट एंड सीजर have in my last duchess? What effect the constant swapping use of enjambment? Okay, so it reflects the way the duke is thinking aloud. आंसर हो जाएगा it reflects the way of the duke is thinking aloud. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. the word my is what kind of word used to highlight the duke's sense of ownership of his wife in my last duchess? ये my जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये कौन सा वाला वर्ड जैसे है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि एक चीज़ को अपना बताता है, तो ये पोजेसिवनेस है. तो सी विल बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. Where is the painting my last duchess? Where is the painting in my last duchess? The painting was
बिहाइंड ए कर्टन, कर्टन के पीछे था एक पेंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु पेंटेड द पिक्चर इन माई लास्ट डचेस, ये पिक्चर कौन बनाया था, ये बनाए थे फ्रा पेंडलॉफ इन द पोएम माई लास्ट डचेस, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज शी हैव अपन हर चीक इन माई लास्ट डचेस, तो ये जो लास्ट डचेस में जो वुमेन कैरेक्टर है पोएम में, तो इनके चीक पर क्या था, स्पॉट ऑफ जॉय, आंसर विल बी स्पॉट ऑफ जॉय, ठीक है। 30 क्वेश्चन, व्हाट वायलेंट इमेज डू वी सस्पेक्ट आर द ड्यूक्स वॉर्स rather than the painter's sin, my last duchess, what violent image do we suspect are the duke's war, तो ये कौन सा वायलेंट इमेज शो करता है ड्यूक्स के वॉर से। ऑप्शंस है चोक्स हर, कट्स अलोंग हर थ्रोट, या फिर रन्स अलोंग हर थ्रोट, या फिर डाइज अलोंग हर थ्रोट, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, where did he say her looks went in my last duchess, where did he say her look went everywhere, her looks went everywhere, so it means, so जो डचेस थी, जो पोइट मतलब स्पीकर की वाइफ थी, तो वो हमेशा दूसरों की तरफ अट्रैक्ट, मतलब उसकी तरफ सब अट्रैक्ट हो जाते थे, तो इसीलिए हर लुक्स वेंट एवरीवेयर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ दिस इज़ नॉट वन ऑफ द पेटी जेलसी इन jealousy is mentioned by ड्यूक इन माई लास्ट डचेस, इसमें से कौन सा एक जेलसी वाला वर्ड नहीं है, ए वाइट म्यूल, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट, ए बो ऑफ चेरिस, और ए क्यूट पपी, तो ये हो जाएगा क्यूट पपी के बारे में जेलसीज नहीं थे पोएट। क्वेश्चन नंबर 33, what phrase shows that he knew what part of her role was to flatter visitors to my last duchess, तो ये बोला गया है कि what phrases shows that he knew that part of her role was to flatter visitors in my last duchess, तो आंसर विल बी she thanked men good, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा she thanked men good। क्वेश्चन नंबर 34, why does he all having a quiet word with her when he thought she overstepped the mark in my last duchess, so what does he call having a quiet word, stooping और स्कूपिंग और लूपिंग और सूपिंग, तो ये हो जाएगा आंसर स्टूपिंग। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है कि एक्सप्रेशन का मीनिंग है स्टूपिंग, ठीक है, पोइट ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज ही से शी गिव्स यू टू अदर मैन द सेम आज हिम इन माई लास्ट डचेस, तो क्या ऐसा चीज़ था कि जो डचेस थी, तो उन्होंने हर एक मैन को ये दिया, और सेम वही चीज़ पोइट को भी दिया, मतलब स्पीकर को भी दिया, मतलब डिफरेंस कोई भी नहीं था उनमें, तो वो था मच द सेम स्माइल, मतलब जो स्माइल वो दूसरे पुरुष लोगों को देती थी वही सेम स्माइल वो देती थी अपने हस्बैंड को, तो ये स्पीकर के लिए थोड़ा अनएक्सेप्टेबल था। क्वेश्चन नंबर 36, इन माई लास्ट डचेस ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड मीन्स शी वॉज किल्ड, ऑल स्माइल, जो जितना वो स्माइल करती थी वो सारा स्टॉप हो गया, मतलब वो उनको मार दिया गया, ठीक है, सारा स्माइल उनका स्टॉप हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट टेमिंग द सी हॉर्स इन द स्टैचू बाय क्लॉज ऑफ इन इंसबर्ग माई लास्ट डचेस, अच्छा, तो ये बोला गया है आंसर विल बी नेपच्यून। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द टेमिंग द सीसोर इन द स्टैचू, ओके, आंसर विल बी नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर विल बी नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर डज द पोएम माई लास्ट डचेस टेक प्लेस, ये कहाँ पर है, कहाँ पर हुआ था ये पोएम का लिखन, तो ये हुआ था फेरारा इन इटली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39,
बोला गया है कि व्हाट डज द ड्यूक मीन बाय हर लुक्स वेंट एवरीवेयर इन द पोएम। ठीक है, हर लुक्स वेर एवरीवेयर, हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, इसका मतलब था कि शी वॉज टेम्प्टेड बाय अदर मैन एंड वेरी अनफेथफुल टू द ड्यूक। मतलब वो दूसरे मर्दों को भी देखती थी और ड्यूक के साथ बहुत बहुत अनफेथफुल बिहेव करती थी, मतलब उनको उनके साथ रहकर भी वो दूसरे पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, तो 40 देखते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस। तो इसका स्ट्रक्चर मतलब कैसा वाला पोएम है, तो ये है राइम्ड एंड आयम्बिक पेंटामीटर का स्ट्रक्चर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ वुड द टोन ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। तो माई लास्ट डचेस का जो टोन है पोएम का, तो इसको बोल सकते हैं हम इट इज़ मिस्chievous और आयरनिक और अनसेटलिंग और पोम्पोस ये हो जाएगा अनसेटलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द वर्ड मेंटल as used in the poem My Last Duchess। Her mantle laps over my lady's wrist too much। यहाँ पर मेंटल का मीनिंग क्या होगा, ए सेल्फ और काउंटर, ए ब्रेसलेट, ए क्लॉक और एन एग्जॉटिक फ्रूट, तो ये हो जाएगा एक क्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, माई लास्ट डचेस इज़ अ डैश ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा आंसर। माई लास्ट डचेस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिर्फ ये बताया गया है ड्रामा को क्रिएट करने के लिए बताया गया है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला पोएम होगा। 44 क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस बिलोंग्स टू व्हिच सेंचुरी। माई लास्ट डचेस स्टोरी ये वाला जो पोएम बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी। द स्टोरी इसका है 16th सेंचुरी का है, लेकिन लिखा गया था इसको 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसका राइटिंग किया गया 19th सेंचुरी में बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर इसका पोएम कौन था, हाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग ही थे। माई लास्ट डचेस का पोइट। क्वेश्चन नंबर 45, इन द पोएम माई लास्ट डचेस द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस वॉज पेंटेड बाय। अच्छा, जो डचेस का पोर्ट्रेट था, पेंटिंग था, उसको कौन पोर्ट्रेट पेंटिंग किया था, हमने ये पहले भी देख लिया था, तो ये इसका था फ्रा पेंडलॉफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, द पोएम माई लास्ट डचेस वॉज पब्लिश्ड, इसका पब्लिशिंग ईयर था 1842। ठीक है, और हमने जो पहले देखा ब्रेक का पब्लिश ईयर क्या था, ब्रेक का पब्लिश ईयर था 1792 समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस का सेटिंग था, ऑप्शंस है फ्रांस, ग्रीक, इटली एंड लंदन। तो ये जब 16th सेंचुरी में इटली में ही ये लिखा गया था, तो इसका सेटिंग था इटली के बारे में। ठीक है, इटली के एक ऐसे डच और ड्यूक के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग द ड्यूक एंड द विजिटर एडमायर इन माई लास्ट डचेस। ये जो ड्यूक के पास जो आए थे विजिटर जो थे, वो दोनों मिलकर कौन सा चीज़ को एडमायर कर रहे थे, जो सब्जेक्ट था पेंटिंग का, वो सब्जेक्ट क्या था, द ड्यूक्स वाइफ और ड्यूक्स लेट वाइफ हम बोल सकते हैं। लेट वाइफ मतलब लास्ट वाइफ जो थी, तो वो थी जो डचेस के बारे में बोला गया है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, द ऑफ द फॉलोइंग which is not one of the duke's complaints against the duchess। तो सब में से कौन सा कंप्लेन डचेस के बारे में नहीं था, तो वो था नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम एट ऑल टाइम। तो ये वाला नहीं था, मतलब जो डचेस थी वो अवेलेबल थी उनके हस्बैंड ड्यूक से, लेकिन ये वाला छोड़कर बाकी सारा जो था उनके खिलाफ कंप्लेंट्स थे। ठीक है, तो 49 कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50, व्हाट फीचर ऑफ द पोर्ट्रेट इज़ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इन माई लास्ट डचेस। व्हाट फीचर ऑफ द पोर्ट्रेट इज़ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग माई लास्ट डचेस, कौन सा फीचर ज़्यादा बात किया गया है इस द पोर्ट्रेट के बारे में, तो ये आइज़ के बारे में ज़्यादा बात किया गया है।
ऑफ द डचेस के आइज़ के बारे में। तो यहाँ तक हमने 50 MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, 2 ठो हमारे इम्पोर्टेंट लिटरेचर वर्क जो कि थे ब्रेक 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 पोएम, और एक है हमारा माई लास्ट डचेस्ट पोएम के बारे में। तो इन दोनों का हमने मिलाकर 50 क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस हम जो रहे हैं वो हम डिस्कशन करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोस मैं ला सकूं। तो आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहिए इसके एग्ज़ाम के लिए। तो टिल देन वॉच माई चैनल एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।